Hello, my dear students. Today we are going to start a new chapter, Getting to Know Plants, of your NCERT book, and you are aware about plants. Today we will come to know more about plant. We will classify plant in this particular video, and you will get more information about plant. So let's start. So major points will be introduction of plants, then what is plant, what is herbs, what are shrubs, and what are trees, and we will classify creepers and climbers based on their quality or characteristics they are showing, and then we will have some assignment. Okay, so let's start. See, whenever we go outside or we observe in our kitchen garden, we get so many plants. Variety of plants are there. Some are very small, some are very big, some are colorful, some are very tiny. So variety is seen, and if you see the flowers, some are green in plants, some are green in color, and even if you see the flower, some are red in color, some are white, some are yellow, some are pink. So varieties are there in flowers also. So if something you observe that what are the differences, and what kind of flower is there in one plant and it is varies in another plant. So wherever you go, whether it is your school, your park or garden, so you get variety there. So today what we are going to do, we will see that what types of plant are there, or how we can classify plants based on their characteristics. So see, even this picture, this is there in your NCERT book, class 6th. So if you go for nature walk, so what you can see, one boy is hugging the tree. It's not only hugging, he is trying to make out whether he is able to hug it properly or not. So, and the girl you are seeing, she is observing very clearly that leaves. Another boy you are seeing that he is looking shrub like plant. So what they are doing, actually they are trying to see the characteristics. वो देखना चाहते हैं कि कौन सा जो पौधा है उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, उसका जो स्टेम है वो कितना मोटा है, कितना बड़ा है, लीव्स का स्ट्रक्चर कैसा है, जो उसकी हाइट है वो कैसी है. तो ये सब काम आप भी कर सकते हैं कि आप अपने आसपास के पौधों को देखिए कि वो कैसे दिखाई देते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनके स्टेम्स जो हैं वो काफ़ी मोटे हैं, डेलिकेट हैं या काफ़ी स्ट्रांग हैं, उनकी हाइट कितनी है. तो ये सारी चीज़ें आप देख के यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट plants and their types. So let's start with the plants. So you know that plants are immobile living organisms. They are living but they are not movable. वो अपने जगह को चेंज नहीं करते हैं. ये देखते हैं कि आप देखते हैं कि जो पौधा आपके किचन गार्डन में है या आपके गार्डन में है या आपके पड़ोस में है, वो आपको जब से आपको दिखाई दे रहा है वहीं सेम प्लेस पे आपको दिखाई दे रहा है. तो इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट एबल टू मूव, मीन्स दे आर फिक्स एट वन प्लेस. और हमारे भोजन का जो मुख्य सोर्स है, मेन सोर्स है, वो प्लांट्स ही हैं. वाई दे आर मेन सोर्स? बिकॉज दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. एंड यू नो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट्स. तो आप सिंपल टर्म में से ऐसे बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस है. तो इसी वजह से प्लांट्स आर प्राइमरी फूड प्रोवाइडर्स फॉर अस. सो चलते हैं थोड़ा और आगे देखते हैं क्या है. तो प्लांट्स को नॉर्मली हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़. तो कैसे हम करते हैं, क्यों हर्ब्स एंड श्रब्स एंड ट्रीज़ कहते हैं? क्योंकि इसमें आप देखिए कि बेस्ड ऑन देयर स्टेम्स, कि उसकी थिकनेस कैसी है, वहाँ पे ब्रांचिंग कहाँ से हुई है, और जो स्टेम्स हैं वो किस स्थिति में हैं, मोटे, पतले
डेलिकेट हैं या ना के बराबर हैं। तो जब आप सबसे पहले को देखेंगे हर्ब्स के बारे में, तो दीज आर प्लांट्स दैट हैव ग्रीन एंड फ्रेल स्टेम्स। यूजुअली दीज आर स्मॉल प्लांट्स विथ नॉट मेनी ब्रांचेज। ग्रीन एंड फ्रेल, तो ग्रीन का मतलब आप जानते हैं हरे कलर का होता है, और फ्रेल का मतलब इनकी जो स्टेम्स होते हैं ये काफ़ी लचीले और काफ़ी कमज़ोर होते हैं, डेलिकेट होते हैं आप बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि येस दिस प्लांट इज़ हर्ब। फॉर एग्जांपल आप मिंट को देख रहे हैं, इसमें मिंट आपको दिखाई दे रहा है, कोरिएंडर दिखाई दे रही, धनिया और स्पिनच, पालक। तो ये सारे जो एग्जांपल हैं, कुछ और भी एग्जांपल हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जैसे फेनुग्रीक, मेथी आप देखते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो और आप अलग अलग देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन हर्ब्स। तो क्या है इनकी क्वालिटी, आप देख सकते हैं इनके स्टेम्स जो हैं वो काफ़ी डेलिकेट हैं, ग्रीन कलर के हैं, कमज़ोर हैं और बहुत शॉर्ट हैं, छोटे हैं। सो दैट्स वाई यू कैन से दीज आर हर्ब्स। तो दिस इज वन टाइप ऑफ plant. Now we will move towards another type of plants, that is shrubs. So what they are having, what are the difference between herbs and shrubs, we will see. So these are plant with hard but not exactly thick stem. आपको herbs में क्या दिखा, you are getting green and frail stem, हरा और कमजोर stem मिला, but here you are getting plants are having stems. It is not thick, but it is comparably stronger than the herbs. Their branches generally originate from the bases of their stems. These are much taller than herbs, but usually shorter than trees. तो these are short. किससे शॉर्ट होते हैं, ट्रीज से, लेकिन किससे बड़े होते हैं, हर्ब्स से। और कुछ एग्जाम्पल आप देखिए कि रोज़ का जो पौधा, गुलाब आप देखते हो, एलोवेरा देखते हो, जैस्मिन, ब्लैकबेरी, ये सारे प्लांट्स जो हैं दीज आर एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स। वी विल सी इन पिक्चर। आप देख पा रहे हैं कि रोज़ है, हिबिस्कस है। सो दीज आर द मेजर थिंग यू आर सीइंग अराउंड यू। और आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर इनके ब्रांचेस को, इनके स्टेम्स को, आप रोज़ के स्टेम को कंपेयर करें, हिबिस्कस के स्टेम को कंपेयर करें, किससे, मिंट से एंड कोरिएंडर से, तो धनिया से। जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड देयर आर सो मेनी यू कैन हैव कंपेरिजन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू ओनली। वाई? बिकॉज दीज आर इजिली अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि रोज़ के, हिबिस्कस के और मिंट और जो आप धनिया देखते हो, इनके स्टेम्स में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं, इसके हिसाब से यू कैन वेरी इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन shrubs and herbs. So now we are moving forward towards trees. तो क्या हैं ये ऐसे पौधे हैं, they are very tall and thick. They are very tall and they are having thick and hard stem. अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो हर्ब्स को के बारे में हमने देखा कि वहाँ पर जो स्टेम था फ्रेल था, डेलिकेट था, बहुत ही मुलायम था और ग्रीन था। जब आप श्रब्स में आए तो आपको स्टेम मिला, मजबूत भी था, बट इट वाज वेरी थिन, ये थिक नहीं था। लेकिन जब आप ट्रीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं तो कंपैरेटिवली आप जब देखोगे तो इनकी जो हाइट है वो भी हर्ब्स और श्रब्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इनका जो थिकनेस है स्टेम का वो भी ज़्यादा है, और जो इनका स्टेम है दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। और जब ओरिजिन ऑफ ब्रांच की बात करते हो, कहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं, तो आपको दिखाई देगा कि जो ज़मीन का लेवल है उसके लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर जाके यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिखाई देती है, ढेर सारे ब्रांचेस जो हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो कुछ एग्जांपल जो आप अपने आसपास देखते हो वो मैंगो है, नीम है, पीपल है। इफ़ यू आर इन साउथ इंडिया यू कैन सी दैट कोकोनट ट्रीज एंड सो मैनी अदर्स, मैनी आर देयर। तो यहाँ पे जो हम कॉमन एग्जांपल देखते हैं वो देखते हैं नीम का, पीपल का और मैंगो का। तो आइए देखते हैं कि क्या है ऐसा। नीम में आप देखिए, इनका जो आपके आसपास अगर नीम का पेड़ हो, मैंगो का हो,
तो आप देखिएगा कि जो इनका स्टेम है काफ़ी थिक होता है, हार्ड होता है, ये स्ट्रांग होता है, और जो इनकी ब्रांचेस है ज़मीन से काफ़ी ऊपर होती हैं। सेम थिंग यू विल गेट इन मैंगो आल्सो। तो आप जब कंपेयर करने का प्रयास करेंगे कि हर्ब्स में, श्रब्स में और ट्रीज़ में क्या सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ये है कि बेटा सारे जो हैं वो प्लांट्स हैं, सारे प्लांट्स हैं, और डिफरेंसेस क्या हैं कि दे आर वेराइटी, दे आर हैविंग डिफरेंस इन देयर स्टेम्स, दे आर ब्रांचिंग, देयर साइज। तो इसके हिसाब से आप इनको अलग अलग कर सकते हैं। क्या क्या इनमें एक जैसी चीज़ें थी वो आपको मैंने बताई, क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैंने आपको बताए, और भी और चीज़ें, कई सारी चीज़ें आप चाहें तो अपने से ऐड कर सकते हैं। आप और भी एग्जांपल्स खोज के और उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि क्या और हम ऐड कर सकते हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट। तो कुछ और भी बेसिस हैं जिसमें हम पौधों को अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ जानने को मिलेगी। आप देखे हैं अपने सराउंडिंग में, एक बार फिर से देखते हैं कि क्या है एक्चुअली। तो दो वैरायटी हैं जिसमें हम कर सकते हैं क्या, एक को कहते हैं क्रीपर्स और दूसरे को बोलते हैं क्लाइंबर्स। तो क्रीपर्स क्या करते हैं, दीज आर प्लांट्स विच हैव सॉफ्ट, वीक एंड ग्रीन स्टेम्स and hence cannot stand straight, instead spread on the ground। तो अभी तक आप कह सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें तो जो थी कि सॉफ्ट, वीक और ग्रीन स्टेम तो आपको हर्ब्स में दिखाई दे रहा था, लेकिन हाउ क्रीपर्स आर डिफरेंट, तो आपको ये दिखाई देगा कि दे आर स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड, काफ़ी लचीले हैं, खड़े नहीं हो सकता, इनका स्टेम जो है वो खड़ा नहीं हो सकता, तो ये क्रीप करते हैं वो। जैसे हाँ बच्चा देखिए कि यहाँ बच्चे का एग्जांपल नहीं लेंगे, यहाँ ऐसे देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ें चल रही हो, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ अर्थ पे चल रही हो, धरती पे चल रही हो, मूव कर रही हो, इसी तरीके से ये पौधे क्या होते हैं, जब ये ग्रो करते हैं तो ये लेटते हुए ग्रो करते हैं एक तरीके से। एक जगह इनका स्टेम इनको सपोर्ट नहीं करता कि ये खड़े हो पाएँ। तो क्या क्या एग्जाम्पल है इसमें, स्वीट पोटैटो, वाटरमेलन, पम्पकिन। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रीपर्स। आप देख पा रहे होंगे कि जो फिगर है वो दिखा रहा है कि पम्पकिन भी क्रीप करता है और ज़मीन पे ही ये फ्रूट बियर करता है, वाटरमेलन, तरबूज, और ये आप मस्क मेलन भी देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं क्रीपर के, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही आसानी से ज़मीन पे फैल के और अपना जो है सर्वाइवल ये सुनिश्चित करते हैं। तो दूसरी चीज़ों को देखेंगे क्लाइंबर्स की, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम जो है वो क्रीपर की तरह ही है, बट क्या डिफरेंस है इसमें ये देखेंगे कि these are also plants with soft and weak stems, but instead of spreading on the ground they take support with a nearby object to climb up। क्या होता है जब इनके टेंड्रिल को देखेंगे, इनमें एक ऐसी चीज़ें होती हैं धागे की तरह निकलती हैं, ये क्या करते हैं नियर बाई ऑब्जेक्ट को पकड़ती हैं, या कहीं कहीं धागे की तरह नहीं भी होता है तो इनका जो एडॉप्टेशन होता है, ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ उस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ये ग्रैब कर लेते हैं, उससे इस तरीके से अटैच हो जाते हैं कि ये आसानी से ये ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। क्लाइंबर ये चढ़ते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, कुकुम्बर, आप अंगूर को देखते हैं, मनी प्लांट को देखते हैं, मनी प्लांट तो आपके आसपास या आपके घर में ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ अलग तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, रूट्स की तरह उसमें से बाहर चीज़ें निकलती हैं, और ये क्या करते हैं स्टेम्स से निकलती हैं जगह जगह से, इनके इंटरनोड्स से, तो सॉरी इनके नोड्स से निकलती हैं, और वो क्या करती हैं ग्रैब कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से जो पौधा होता है बहुत ही आसानी से ऊपर चढ़ जाता है। तो दीज आर द क्रीपर्स एंड क्लाइंबर, ये दो तरीके हो गए। एक को आपने देखा कि ज़मीन पे स्प्रेड होता है, वो क्रीपर कहलाता है, और जो नियर बाई ऑब्जेक्ट की सहायता से उसके ऊपर चढ़ के और ऊपर की तरफ बढ़ के अपना सर्वाइवल करते हैं, वो क्लाइंबर्स होते हैं। इनका एग्जाम्पल आप देखिए, जो मटर का पौधा है, अंगूर आप देख रहे हैं, मनी प्लांट है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल है।
तो in this way we studied about variety, like how you can classify the plants. So we classified herbs, shrubs and trees based on their quality of stem, their height and their thickness and branching. तो इसके हिसाब से हमने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़ में क्लासिफिकेशन किया। और फिर हमने देखा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। क्रीपर को देखे कि ये इनका जो स्टेम है डेलिकेट है सब, और ये स्प्रेड करते हैं ज़मीन पे। तो क्लाइंबर को देखा कि इनका भी स्टेम जो है डेलिकेट है, वीक है, और ये नियर बाई ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लाइंब करते हैं और वहाँ पे अपना सर्वाइवल ये मेंटेन करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग्स वी डिस्कस्ड इन आवर टुडेज़ क्लास। तो अब क्या है, अब आपको करना है कि आपको नोट्स बनाना है जो स्लाइड्स दी गई हैं, और हो सकता है तो आप डायग्राम भी बना लीजिए अच्छे से। और आप ट्राई करें कि आप जो वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, तो कुछ और हर्ब्स और श्रब्स, ट्रीज़, क्रीपर और क्लाइंबर को का एग्जांपल आप अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। और दीज आर द रिसोर्सेज फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन। सो एनसीईआरटी बुक इज़ द मेन फोकस। तो वहाँ से आप एक बार फिजिकल रीडिंग जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। जय हिंद।